ओके, वन वर्ड और फ्रेज। चलो चालू करो। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, क्या बोलेंगे? कैपिटल। नेक्स्ट पार्ट, डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स। वेदांत। Transaction. Transaction. Next, property of any description owned by a proprietor. Asset. Asset. A person whose assets are sufficient enough to meet few business obligations. Solvent. Asset are more than his liabilities, वो meaning है, ठीक है? Next, a person to whom amount is payable. Drawing. नहीं, creditor. Credited. Okay. Next part, business transaction which cash is not paid or received immediately. Credit transaction. Credit transaction, correct. Next, an allowance given by receiver of the cash to the giver of cash at the time of payment. Discount. कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश की बात कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम। Loss. नेक्स्ट पार्ट, लायबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। जैसे कोर्ट केस हार गए तो भरना पड़ेगा, जीत गए तो कुछ नहीं। सो उसको कंटिंजेंट इवेंट बोलते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कोई इवेंट होता है कंटिंजेंट और लायबिलिटी होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या नेक्स्ट है, एन एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स व्हिच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू, कैपिटल, डिफर्ड रेवेन्यू। Capital expenditure. Next part, system in which entry is recorded for cash as well as credit transactions. Accrual system. Sorry, accrual system. Concept under which comparison of one accounting period with the other period is possible. So nice, sir. Again, inconsistency concept बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। Business assets which cannot be seen, touched, but can be sold for cash. Intangible asset. Intangible asset. Name the account which is debited when the proprietor uses business money for domestic use. Drawings. Proprietor's personal account. क्या कौन सा रहता है पर्सनल अकाउंट? लायबिलिटी साइड क्या आता है? Capital. कैपिटल। ऑथर को, ओनर या ऑथर को कॉपीराइट के लिए क्या पैसा देता है पब्लिशर? क्या बोलते हैं? Royalty. Royalty. राइटिंग साइड ऑफ एन अकाउंट। Credit side. Accounts other than the impersonal account. Personal account. Personal account. impersonal में रियल और नॉमिनल आता है, तो बाकी बचा सिर्फ एक पर्सनल। नेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। Real account.
Name the account which is debited when dog is purchased. जानवर को खरीदते हैं तो किसको डेबिट डालते हैं? Livestock account. Next, left hand side of an account. Debit side. Name the account which is debited for payment of import duty. Import duty. Import duty या custom duty उसको डेबिट करते हैं. और documentary evidence of the transactions. नहीं सर, इसका नहीं आ रहा सर. Voucher. यहाँ पर entry पास होता है. The documents used for withdrawing the amount from bank. Withdrawal slip. Withdrawal slip बोलो, check बोलो. 5,000 रुपए के ऊपर किसी को रेवेन्यू दे रहे हैं तो कितने का रेवेन्यू स्टैंप लगता है? 5 रुपए. 1 रुपया. Next, voucher prepared for small amount of payment. Ready cash book. Book नहीं, petty cash voucher. Last, document prepared for difference in quantity mentioned in the bill and the actual amount delivered. कम हो गया तो फिर डेबिट नोट भेजते हैं कि भाई फर्क आ गया. डेबिट या क्रेडिट नोट. A document used for goods purchased for cash. Cash memo. A check on which two parallel lines are drawn. Cross check. First. Next, a check which can be encashed as a counter of the bank. Order check. ना बेरर चेक. ऑर्डर तो किसी को देता है, बेरर खुद जाके विड्रॉ कर लेता है. A document used to acknowledge cash received. नहीं सर, इसका नहीं आ रहा सर. सिंपल है, रिसीट देता है कैश मिला तो. नेक्स्ट, अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. Journal. The process of recording transactions in the journal. Journalizing. Brief explanation of an entry. Narration. The French word from which the word journal is derived. Jour. Jour. Entry in which more than one account are to be debited or credited. डेबिटेड मतलब दो से ज्यादा अकाउंट रहा तो कंबाइंड एंट्री होता है, ये कंपाउंड एंट्री बोलते हैं. Anything taken by the proprietor from business for his personal use. Drawings. Next, amount of money payable to broker while buying and selling the shares and securities. Brokerage. जो कि 0.3% होता है, करीबन 0.25, 0.3. Entry in which one account is debited and another account is credited. Simple entry. Simple entry. The column in journal which is not filled at the time of journalizing. Ledger folio. An account that is debited when rent is paid to the landlord. Rent account.
Person who maintains petty cash book. Cashier. Petty cashier. A bank account which the businessman prefers to open. Current account. Petty cash book in which the payment side is ruled in suitable columns. उसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक बोलते हैं. Subsidiary books in which only credit purchase of goods is recorded. कौन सा उधारी गुड्स खरीदते तो कौन सी बुक में जाता है? Sale. परचेज बुक. Subsidiary goods in which return of goods sold on credit is recorded. Sales return book. बढ़िया. Book in which cash discount received and allowed is recorded. कौन से बुक में cash discount record होता है? Journal proper. जनरल प्रॉपर कैसे? रुको, कैश. हाँ ठीक है, इनिशियल जनरल प्रॉपर आया. वैसे कैश बुक भी लिख सकते थे इधर. Accounting entries passed in general proper for correction of mistake committed in the books of accounts. कौन सा accounting? Sir, rectified entry. Rectification entries, ठीक है. So rectification entries pass करते हैं. A note issued by buyer to seller giving full details of good return. जब बायर खरीदता है उधारी में तो क्रेडिट. Debit note. सुनो, जब बायर खरीदता है तो क्रेडिट देता है सेलर को, और जब लौटाता है तो उल्टा करता है, उसको डेबिट करता है. डेबिट करने के लिए डेबिट नोट बेचता है. ठीक है. Note issued by the seller on receipt of defective goods from the customer. सेलर जब कस्टमर को बेचता है तो डेबिट करता है, जब कस्टमर से वापस आता है तो कम करना पड़ता है तो उसको क्रेडिट करता है. क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट नोट देता है. नेक्स्ट. साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक टू ट्रांसफर इट्स ओनरशिप. किसी और को चेक देना है तो उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं. मतलब तुमने चेक किसी और, तुमको चेक मिला 100 रुपए का, तुमने अपने फ्रेंड को दिया तो पीछे साइन करोगे और नाम लिखोगे. An extract of customer's account maintained by bank. Passbook. A type of check where the holder is paid the amount across the counter of the bank. Bearer check. Bank on whom a check is drawn. चेक में 3 पार्टीज होते हैं. जो बनाता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं, जिसको देता है पे बोलते हैं, और द बैंक इज ऑलवेज द ड्रॉई. ठीक है. Excess of bank withdrawal over bank deposits. Overdraft. 100 रुपए का बैलेंस 120 का विड्रॉ किया, मतलब ओवरड्राफ्ट लिया तुमने, 20 रुपए कर्ज हुआ. Next, documents used for depositing cash or check into the bank. उसको क्या बोलते हैं? छोटा कागज रहता है ना, Slip. पेन स्लिप. स्लिप could be withdrawal slip also. उसको खास पेन स्लिप बोलते हैं. Transfer of journal entry from journal to ledger. Posting.
total of debit side of an account is more than total of credit side of an account? If the debit side is more than debit balance बोलेंगे, debit side ज्यादा या debit side का total बड़ा हो तो page number of ledger, LF, full form में क्या बोलेगा, ledger folio. ledger folio. A book of an account in which all ledger accounts are maintained. Ledger. हर एक को अकाउंट बोलेंगे और सब अकाउंट को जोड़ दोगे तो लेजर बन जाता है. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट को क्या बोलेंगे? Debit. Debit side, साइड, credit side. क्रेडिट साइड. अभी को आदित्य पार्टिसिपेट कर तू भी. आदित्य आ गया. Type of account which are not balanced but transferred to trading account or profit and loss account. नॉमिनल अकाउंट कभी भी फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं, कैरिड डाउन नहीं होता, वो डायरेक्टली ट्रेडिंग या पीएनएल में जाता है. मतलब वो बैलेंस शीट में पर्सनल रियल अकाउंट को बैलेंस करके आगे लिया जाता है. नेक्स्ट, बॉन्ड बुक ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? लेजर. एन अकाउंट विद टोटल ऑफ परचेज बुक. परचेज बुक का टोटल कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट में. A statement of account prepared from the balance of ledger account. लेजर के सारे बैलेंसेस जो है ना ब्रॉट डाउन, वो कहाँ जाते हैं? फाइनल अकाउंट से एक स्टेप पहले कौन सा रहता है? ट्रायल बैलेंस बनता है ना उससे. Statement showing causes of difference between the balance of cash book and passbook. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भूल गए? नेक्स्ट, कौन से अकाउंट को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है? Current account. करंट अकाउंट. एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट साइड ओवर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. मतलब डेबिट साइड ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? Bank balance. उसको बैंक बैलेंस बोलो या डेबिट बैलेंस बोलो तो भी चले. एन अनफेवरेबल बैलेंस शोन बाय द पासबुक. पासबुक का हमेशा बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट रहता है. यदि अनफेवरेबल रहा मतलब डेबिट साइड ज्यादा, मतलब लोन, मतलब ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट, अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इशूड बाय द बैंक. कस्टमर्स अकाउंट जो बैंक मेंटेन करता है, बुक कौन सा देते हैं तुमको? पासबुक. और बैंक स्टेटमेंट. आजकल तो पासबुक कम मिलता है, बैंक स्टेटमेंट ज्यादा मिलता है. ब्रोकर वो तो ईमेल में भेजते हैं वो लोग. आदित्य आया क्या? नहीं गया. ठीक है. बुकलेट और स्टेटमेंट इन विच यूज्ड टू रिकॉर्ड द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. बुकलेट कौन सा रहता है वो? ठीक है. वेदांत तेरा वीडियो ऑफ कर सकता है. क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. सो कैश बुक का क्रेडिट साइड ज्यादा, मतलब ओवरड्राफ्ट. रिफ्यूजल बाय बैंक टू मेक पेमेंट ऑफ चेक. तुमने बैंक को रिक्वेस्ट किया होगा कि पे करो, लेकिन तुम्हारे खाते में पैसे नहीं, तो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर ऑफ चेक बोलेंगे.
A list of debit balance and credit balance in the ledger. क्या बोलते हैं उसको? ट्रायल बैलेंस. हाँ बोलो दूसरा 76. A statement to provide the base for preparing the final accounts. कौन सा स्टेटमेंट है? आवाज आ रही नहीं आ रही है? आवाज आ रही है क्या? पार्थ, वेदांत, वंश, आदित्य. ठीक है, शायद आवाज नहीं. एग्जिट करके री एंटर करो, तब तक मैं आंसर बोलते जाता हूँ. सो जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट से पहले उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. और वही ट्रायल बैलेंस जिसको बैलेंस नहीं करते हैं, जस्ट टोटल डालते हैं, उसको ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बोलेंगे. Mention the side where goodwill account is appeared. Goodwill asset है, therefore if you check out it will always have a debit balance क्योंकि संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है. लेजर अकाउंट्स क्लोज करने के बाद कहाँ ट्रांसफर होता है? वो जाता है ट्रायल बैलेंस में. ठीक है ना. और वो ट्रायल बैलेंस को जब बैलेंस करते हैं तो नेट ट्रायल बैलेंस, टोटल करते हैं तो क्रॉस ट्रायल बैलेंस. सो एरर्स ऑफ इनकरेक्ट और इनकरेक्ट एंट्रीज को तुम ठीक करते हो रॉन्ग पोस्टिंग का, तो वो एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं. 5672 के बजाय 7562 कर दिया, ऐसा एरर ऑफ कमीशन. अकाउंट टू विच डिफरेंस ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. जब डिफरेंस आता है तो एक टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं, उसको सस्पेंस बोलते हैं. सस्पेंस फिर कारण ढूंढते हैं क्यों डिफरेंस आ रहा है, और फिर एट द एंड ऑफ फिनिशिंग एवरीथिंग सस्पेंस टैली होता है. सस्पेंस कभी भी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में बनता नहीं है, टेम्पररी अकाउंट बनाया जाता है. क्लर्क्स कौन सा अकाउंट बनाते हैं? टेम्पररी. क्लरिकल एरर्स हो जाता है, गलत डेबिट हो गया, गलत क्रेडिट हो गया, टोटलिंग एरर हो गया. ट्रांजैक्शन रिमेन टू बी रिकॉर्डेड. भूल गए तुम रिकॉर्ड करना, ठीक है ना. या तो पार्शियल या फुल रिकॉर्ड ही नहीं किया, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन. और एरर इन विच इफेक्ट ऑफ वन मिस्टेक इज नलिफाइड बाय अनदर मिस्टेक. पाटिल को क्रेडिट करने के बजाय पटेल को क्रेडिट किया, दैट इज एरर ऑफ कमीशन या कॉम्पनसेटिंग एरर बोल सकते हैं. आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है. एन एंट्री पास टू कैंसिल द रॉन्ग इफेक्ट्स एंड गिव करेक्ट एंट्रीज टू अकाउंट्स इफेक्टेड. यदि कोई गलत एंट्री पास किया है, उसको सॉर्ट आउट करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करना पड़ेगा. कुछ गलती हुआ तो दरवाजा बंद कर लेना. फिर एरर्स ऑफ कैलकुलेशन, कुछ टोटलिंग एरर हो गया, कुछ तो है ना. सो दैट इज अरिथमेटिकल एरर्स. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, ठीक है ना. एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, तो वन साइडेड एरर होगा. जैसे एक को डेबिट किया पर क्रेडिट नहीं किया. एरर्स जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है ना, उसमें टू साइडेड एरर्स. तुमने दोनों साइड का एंट्री पास नहीं करा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा लेकिन वो एरर बता नहीं पाएगा. टेकिंग द टोटल मोर व्हाइल क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओवरकास्टिंग, ज्यादा टोटल कर दिया. The method of depreciation under which depreciation is calculated on balance amount, उसको diminishing balance या तो reducing balance मेथड बोलते हैं. जब फिक्स्ड एसेट लाइफ खत्म हो जाता है, जब भंगार में बेचते हैं, तो जो भी कीमत आता है उसको सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना. रेसिडुअल, सैल्वेज, भंगार में जो बेचेंगे. टाइप ऑफ एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड, कोई बोल सकता है? फिक्स्ड एसेट, करेक्ट. डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे होता है, करंट एसेट पे नहीं. एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स रिटर्न ऑन वैल्यू. सीधी बात, हमारे बुक वैल्यू 50,000 है, बेचा 60,000 में, तो प्रॉफिट ऑन सेल हुआ वो, उसको फिर पीएनएल क्रेडिट में वो जाता है. तुम जो परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी देते हो, इंस्टॉलेशन, ठीक है, सब चार्जेस, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाता है. ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसको
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल सकते हैं। ग्रेजुअल, कंटिन्यूस एंड परमानेंट रिडक्शन, कोई बोल सकता है इसका आंसर? depreciation, डेप्रिसिएशन। सो जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर होता है? डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और जो क्लोजिंग क्रेडिट P&L account, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो रिजर्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। जैसे कि डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, डिवेंचर लौटाने के लिए एक फंड की स्पेसिफिक क्रिएट किया जाता है। द रिजर्व आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तुमने जमीन बेचा, नफा कमाया, तो एक अलग से रिजर्व क्रिएट किया जाएगा जिसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन balance sheet, कैरेज पेड ऑन सेल ऑफ गुड्स, बोल कैरेज है कि कैरेज इनवर्ड है कि कैरेज आउटवर्ड है? carriage outward, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब डेबिट साइड ज्यादा तो क्या बोलेंगे? uh, क्रेडिट साइड ज्यादा तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड क्या बोलेंगे? gross loss, ग्रॉस लॉस। ओके, सो लास्ट के 2 स्लाइड्स बचे, उसमें से ये एक है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्या बोलते हैं उसको? डेबिट साइड ज्यादा तो नेट लॉस बोलते हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ एन एसेट, ठीक है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और डे टू डे खर्चा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सो अगले साल के लिए पैसा भरा तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या आता है क्वेश्चन में? 4-5 चीजें क्या रहते हैं उसमें, लाइन में रहता है ना, उसको एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। वैल्यू फिक्स्ड एसेट का इस्तेमाल करने से वैल्यू घटता है, उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। और डेथ, जो रिकवर नहीं हो सकता, डूब गया, क्या बोलेंगे उसको? बैड डेट्स। The type of account wherein purchase and sales accounts are included, trading account में आता है purchase और sales। Name the type of company in which the inventory is maintained, ठीक है ना? So that is account with inventory। मतलब सिंपल सा इन्वेंट्री अकाउंट अलग से अकाउंट किया जाता है। स्टेट द ग्रुप इन विच, ये थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज आउटवर्ड्स इन वेजेस, नहीं कैरेज आउटवर्ड नहीं, कैरेज इनवर्ड्स होगा, उधर में करेक्शन कर दो एक। नेम द वाउचर इन विच ट्रांजैक्शन, उधारी में बेचते हैं तो क्रेडिट मेमो बनाया जाएगा। सो आखिर के 4, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्वेंटरी फीचर विच आर ओपन, F11 और change in accounting period L plus F2, ये कंप्यूटर बेस्ड है थोड़ा। The function key for access the company information menu L plus F3, shortcut key to accept save or accept the control plus A। So यहाँ पे तुम्हारा ये भी खत्म हो जाता है।